tell you about दालचीनी की लकड़ी, जिसे इंग्लिश में सिनेमॉन्स भी बोला जाता है, सिनेमॉन्स स्टिक भी बोला जाता है। तो जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो दालचीनी की लकड़ी है और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है जो कि करीज में, पुलाव में, चाय में, सब में लोग यूज़ करते हैं। तो आज मैंने सोचा इसके विषय में कुछ बात हो जाए, तो आज मैंने टॉपिक लिया है दालचीनी की लकड़ी, सिनेमॉन स्टिक। अब सिनेमॉन स्टिक, दालचीनी की लकड़ी जो है, इसकी बहुत प्यारी सी एक कविता है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। महक भरी सुंदरता भरी एक प्याली, दालचीनी की छड़ी, खुशबू की सवारी, सर्दी की सुबह, गरम चाय की चुस्की, खुशबू बिखेरती, दिल में भरती मस्ती। गुजरी रातों में सर्दी की चादर के तले, दालचीनी की छड़ी, सुखद यादों की मृदुल धुंधली। चाय की प्याली में जैसे सपना रंगा हो, प्याली के भीतर प्रेम का गीत गाया हो। खुशबू में छुपा एक रहस्यमय कहानी, दुनिया की तकलीफें मिटे जब ये आए। हर लम्हा हर घड़ी सजता है इसके संग, दालचीनी की छड़ी, सुखद एहसास का रंग। इस छड़ी में बसी नजदीकियों की बातें, सर्दी की रातों में गर्माहट की सौगात, मधुरता की मूरत, प्रेम की पहचान, दालचीनी की छड़ी, जीवन की मिठास की खान। कितनी प्यारी कविता है दालचीनी पे। कोई भी चीज़ ले लो उस पे प्यारी प्यारी कविताएं बन जाती हैं, तो वैसे ही ये दालचीनी की लकड़ी पे प्यारी सी कविता सुनाई मैंने। आप यही दालचीनी की लकड़ी को इंग्लिश में सिनेमॉन्स बोलते हैं। अब सिनेमॉन्स पे प्यारी सी पोयम हो जाए। In a kitchen warm and bright, where spice dance in morning light, there lie a stick and both filled and sweet, and the wonder wrapped in simple teas. Dalchini is its humble grace, a magic wand with the ancient faith, and the curries rice soups and divine. Its magical well means where flavors tempting. A fragrance hangs in the cinnamons and the turn bells to the bowl. The symbol of bliss, it enhances wrapped in the pot and the pan. Its strand unfold its secret plans. For the humble prince to arrowhead trapped, and to journey where his spice spread. In every bite, a story told of distance, land, and flavor bold. Oh, Dalchini, in your quiet world, and your charm the taste buds. Come, what may, with the warmth and the depth that none can fake, a gift in every dish you make. So, here to you a solving store, a stick of spice, both ripe and true, a fragrance fence in the kitchen stove, and your bites and the flavor add heat. ये दालचीनी सिनेमॉन्स पे प्यारी सी कविता थी जो मैंने सुनाई। अब बात करते हैं दालचीनी के ऊपर कि दालचीनी आखिर है क्या। दालचीनी is the Hindi term. Hindi term it is a dalchini, and English term it is a cinnamon. And दालचीनी की लकड़ी refer to the cinnamon stick, which I already told you. Cinnamon is
a popular spice that comes from the inner bark of the trees from the gummy cinnamons. And here is a some cinnamon stick we are going to tell you about it. Its appearance. Cinnamon sticks are typically rolled up pieces of the bark from the cinnamon tree, and they have a tube-like and curled and shape, and can range in the color from the light brown to the reddish brown. When broken, and they reveal the layers of structure and often showing in the series of the circle and its type. Its type is true cinnamon, known for its lighter color and the delicate and the sweet flavor. And it is often used in the barking of that high end of curing of the applications. This more common and has a stronger flavor, and it is usually less expensive and is often found in the grocery stores. And this flavor means cinnamon stick have a warm and sweet and slightly spice flavor. The aroma is a fragrant and is invite that which make is popular choice for the adding that of both sweets and the Solomon dishes. Is that infusion of these means cinnamon sticks are often used to infuse liquid like tea, coffee, and sauces, adding up enhancing its rich flavors in their dishes. And in the cooking process, they can be used in the recipes like curries and the stew and the rice dishes to impart of the warm aromatic flavor. And the baking means they can also use in the baking either whole of the ground in the recipes for the from cakes, cookies, and pastries as well. And the health benefits means cinnamon contain antioxidant that help combine that oxidants stress and inflammations. And the blood sugar regulations means some studies suggest that the cinnamon can help lower blood sugar level and improve the insulin sensitivities. And the antibiotic means properties it has this which we I am going to tell you, that is a cinnamon has a natural antimicrobials that properties which may help in the combinations of a certain bacteria and the fungi also. It protects from fungi and the bacteria into that any series. The storage purpose means cinnamon stick should be stored in airtight container in a cool place or a dry places, maintaining their protections and the flavors. And its proper storage they can be served several years. What is their flavor maintain over time too. We have to use it this airtight container. And the other point also come into it, that is when using the cinnamon stick, you can add them to a pot of the simmering of a liquid to the releasing their flavor
For the strong flavor, you can bake and stick into the small pieces. Then, then you can use it. And if the recipe called that ground cinnamons, that is a powder form. You can grind it this stick yourself, and as well as you can purchase this cinnamon powder, and using a spice grinded powder for the fresh that more instant that flavor which you want. The cinnamon sticks are the versatile and aromatic spice that adds distinguishes touch of the many dishes which you are using them in the sweet desserts or serving of dishes, and their unique flavor profile are the potential health-wise benefits and make them invaluable additions to make in their kitchen. अब दालचीनी स्पाइस का नाम आते ही एक मसाले के रूप में बहुत लोकप्रिय है और जो खाने में खुशबू और स्वाद को बढ़ा देता है। ये एक प्रकार की जो एक छाल होती है जो दालचीनी का जो पेड़ होता है उससे प्राप्त होती है। तो दालचीनी का आम तौर पर उसको सुखा करके उसकी छाल के टुकड़ों को या उसके पाउडर के फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो दालचीनी की जो लकड़ी है वो खाना पकाने में यूज़ होती है। जैसे दालचीनी की विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, करीज, सब्जियाँ जो करी वाली होती हैं लिक्विड वाली, और उसमें सूप में भी दालचीनी के पाउडर या दालचीनी की लकड़ी का यूज़ करते हैं। ये खाने को उसका एक अलग खास और मनमोहक स्वाद बना देती है दालचीनी की लकड़ी। अब क्या लाभ इसका, जो दालचीनी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स गुण जो होते हैं ये पाचन में सहायता कर सकते हैं। ये कुछ ना अध्ययनों के अनुसार माना गया है कि ये जो रक्त शर्करा मीन्स ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित करने में भी बहुत मदद करती है दालचीनी की लकड़ी। अब बात करी जाए इसके तो दालचीनी के जो छाल का जो उपयोग घर की सजावट में भी करते हैं। जैसे इसकी खुशबू देने वाली मोमबत्तियाँ हैं, एयर फ्रेशनर है, इसमें भी दालचीनी की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं दालचीनी के जो अधिक सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर दालचीनी की लकड़ी है वो बहुत ही गर्म होती है। अब दालचीनी का एक जो प्रमुख मसाला जिसमें कि जो भारतीय रसोई में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, ये एक प्रकार की जो छाल है जो दालचीनी के पेड़ से प्राप्त होती है। अब दालचीनी के जो स्वाद में एक मीठा और तीखा जो तत्व होता है, इसका जो उपयोग मिठाई बनाने में, चाय में और मसालेदार व्यंजन बनाने में और पुलाव बनाने में, चावल का पुलाव बनाने में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है भारतीय किचन में। अब दालचीनी के जो स्टिक है, इसकी जो छाल में की क्या है, इसकी जो उत्पत्ति इसका कैसे, जैसे दालचीनी जो है वो दो प्रकार की किस्म की होती है। जैसे एक ओरिजिनल दालचीनी होती है और एक कसेला टाइप की दालचीनी होती है। ये दो प्रकार की दालचीनी होती है। एक बहुत ही ओरिजिनल स्मेल वाली दालचीनी और एक बहुत कसीली टाइप की दालचीनी होती है। तो ये देखना पड़ता है। जैसे जो ओरिजिनल दालचीनी की जो होती है वो हल्की स्वीटिश, तो उसका स्मेल बहुत अच्छी होती है और थोड़ी महंगी भी आती है। और कसेली दालचीनी जो होती है वो आम तौर पर अधिक सस्ती आती है, सामान्य रूप से वो मिल जाती है, लेकिन उसमें एक गंदा सा कसालापन होता है। अब इसके जो स्वाद और खुशबू की बात करी जाए तो दालचीनी का जो स्वाद है वो मीठा और तीखा होता है। इसमें एक गर्म और खुशबूदार सुगंध होती है जो कि व्यंजनों को एक विशेष स्वाद देती है, उसको यूनिक बना देती है। अब
इसके स्वास्थ्य की बात की जाए तो बात किया कि दालचीनी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फ्लेवर मटेरियल गुण होता है और एंटी माइक्रोबियल्स गुड्स। तो ये क्या है कि ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी मदद करती है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं कि जो दालचीनी की जो स्टिक को चाय बनाने, सूप बनाने और में भी इसका डाला जाता है, बनाया जाता है। इसके फ्लेवर्स इसकी उस चीज़ के फ्लेवर्स को इन्हेंस कर देती है दालचीनी की लकड़ी। अब इसे पूरी तरीके से जैसे पकाने के जैसे कुछ समय बाद एक समय बाद जब उबलता है उसके बाद, ताकि उसकी जो स्वाद है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इसको दालचीनी की लकड़ी को पूरा खाना बन गया, उसके बाद में आपने इसमें डाला गया तो आप लोग ये समझिएगा कि इसमें फ्लेवर आएंगे। इसलिए इसका एक प्रोमिनेंट टाइम होता है, या तो कोई चीज़ बन रही है उस टाइम डाला जाए तो वो पूरा जितने टाइम वो सब्जी करी या पुलाव या चाय वो बन रही है तो उसमें जितने टाइम में ये जितना टाइम तक उसके अंदर रहेगी उसके फ्लेवर्स को इन्हेंस करेगी। कम टाइम के लिए डालेंगे तो उसमें फ्लेवर्स कम आता है और इसलिए कोई भी चीज़ का फ्लेवर डालने से पहले, जैसे आप कोई चीज़ जैसे करीज बन रहा है, पुलाव बन रहा है, चाय बन रही है या कुछ और भी बन रहा है, तो उसमें आप सबसे पहले दालचीनी की लकड़ी डालते हैं तो उसमें उसका फ्लेवर्स इन्हांस हो जाता है। जब तक जो करीज बनती है और सूप्स बनते हैं तो इसका फ्लेवर्स इन्हांस हो जाता है। अब दालचीनी की लकड़ी को स्टोर करने की बात होती है, जैसे कि इसको स्टोर कैसे करते हैं। अब दालचीनी की लकड़ी के बारे में क्या है, इसकी स्टिक को एक सूखी, ठंडी और गहरी जगह पर भी रखा जा सकता है। ये जो स्टिक को अच्छे से स्टोर किया जाता है जिससे कि ये लंबे समय तक चल सके, ताज़ी बनी रहे। अब दालचीनी की लकड़ी जो है इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और ये व्यंजनों में अनिवार्य रूप से डाली जाती है। जिसको मालूम है वो डालता है, जिसे नहीं मालूम है तो उसे मालूम ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए ये नहीं है। अब दालचीनी की जो लकड़ी है, दालचीनी का जो इस्तेमाल है स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी होता है। व्यंजन में अनिवार्य माना जाता है जो कि एक हेल्दी भोजन को हेल्दी बना देता है। अब दालचीनी की जो स्टिक है इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन में दालचीनी की लकड़ी की भरमार कर दी जाए और तो वो फ्लेवर की जगह उसका वो नुकसान करने लगता है। तो हर चीज़ की एक छोटा सा एक वो रहता है कि लिमिट में डाला जाता है। कोई भी फ्लेवर्स है इसमें वो लिमिट में डाला जाता है कि इसकी कोई भी करी बनी उसकी 1 स्टिक इज इनफ फॉर दैट करी। चाय में स्मॉल सा छोटा सा पीस ही इनफ रहता है। तो इसकी क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूज़ करने में कि किस चीज़ में कितनी क्वांटिटी डालनी है। अब इसके फायदे की जो बात करी जाए, जो पाचन में सुधार करता है। अब दालचीनी की जो है जो पाचन के लिए बहुत बेहतरीन उपाय है। इसमें पेट की जो समस्या होती है, सूजन है पेट में या कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसमें भी बहुत मदद करती है। और सबसे बड़ी बात है दालचीनी की जो लकड़ी है वो वेट लॉस में भी बहुत मदद करती है दालचीनी की लकड़ी। अब ब्लड शुगर की बात करी जाए तो इसको कंट्रोल करती है। दालचीनी की जो लकड़ी है वो जो ब्लड शुगर है उसके स्तर को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे कि ब्लड शुगर जो है वो रोगियों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो वो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है दालचीनी की लकड़ी। अब इसके एंटीऑक्सीडेंट्स गुण की बात कर ली जाए तो दालचीनी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स गुण है जो कि शरीर को जो हार्मफुल बैक्टीरिया स्पर्म होते हैं उनको हटाती है। और इसकी जो धीमी धीमी महक होती है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट होती है और बहुत ही यूजफुल होती है बॉडी के लिए। अब इसके प्राकृतिक और एंटीबैक्टीरियल्स की बात करें तो दालचीनी में जो है एंटीबैक्टीरियल्स गुण होते हैं जो कि बैक्टीरिया और अन्य रोगजननी से लड़ने में मदद करते हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है दालचीनी की लकड़ी। अब इसके सर्दी जुकाम से भी राहत देती है। दालचीनी की जो लकड़ी होती है उस सर्दी जुकाम हो जाने पर भी इसकी बनी
चाय जो होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है सर्दी जुकाम होने पर। अब इसके नुकसान की बात करी जाए तो अधिक मात्रा में सेवन करने से, दालचीनी की जो अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है कि ये पेट में जलन पैदा कर देती है, उल्टी आती है और अन्य पाचन समस्याओं भी हो सकती हैं ज़्यादा मात्रा में दालचीनी का उपयोग करने से। अब एलर्जी मीन्स कुछ लोगों को जैसे रहेगी दालचीनी से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। तो हर चीज़ बताया कि हर चीज़ एक्सेस में खाने पर प्रॉब्लम करती है और लिमिटेड खाने पर प्रॉब्लम नहीं करती है। वैसे स्पाइस की ये है। कुछ लोगों को जैसे दालचीनी से एलर्जी हो जाती है, जिससे कि त्वचा में स्पॉट्स आ जाती है, स्पॉट्स आने की भी संभावना होती है दालचीनी की लकड़ी, क्योंकि यह बहुत गर्म होती है इसलिए। अब जिसको शुगर की प्रॉब्लम है तो उसमें दवाई जैसे जो ले रहे हैं उनके लिए क्या रहता है कि ये जो दालचीनी का जो है वो अत्यधिक सेवन से, मतलब अत्यधिक सेवन से जो इसका ब्लड शुगर स्तर है उसको बहुत कम कर देती है, लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि हर चीज़ लिमिट में खाने पे ही कंट्रोल करती है, एक्सेस में खाने पे नहीं करती। तो इसे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए ये सब चीज़ करने से पहले। अब इसके लीवर के लिए भी हानिकारक होती है। दालचीनी में जो कुछ मात्रा में मैंने बोला इसकी स्मेल और इसका स्ट्रॉन्गनेस वो इसमें मात्रा में रहता है, जो कि अधिक सेवन करने से लीवर को भी नुकसान कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दालचीनी के जो सेवन से जो संतुलित मात्रा में ही यूज़ करना चाहिए। इसकी जो चिकित्सा, इसकी जो दवाइयों के साथ में मिला करके डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि दवाइयों के साथ मिला करके यूज़ करें, जिसको जो प्रॉब्लम होती है। अब हर एक इंसान की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस डॉक्टर की सलाह के बाद ही लोग यूज़ करते हैं दालचीनी की लकड़ी। अब certainly दालचीनी is a Hindi term of that flavor, and the stick here some merit and demerits. I'm going to tell you about it. Merits. Merits of the cinnamon sticks, flavors and additions means cinnamon stick add a warm, spice and spicy flavor to dishes, and making them popular in both sweetness and the sours of the recipes. And the longer life means compared to the ground cinnamons, this cinnamon stick have a longer shelf of life. They means stay fresh for the long period of time that when they strong property. And the versatility means that cinnamon stick can be used in the variety of the ways, means infused into the liquid like tea or the both of that, adding of the baking goods flavor dishes, and the flavor essence of the curries also as well as that. And the whole spice benefits is cinnamon sticks remain their essential oil and the flavor longer than the ground cinnamons, and they provide a more robust means flavor and when the using in cooking. Health beneficials means the cinnamon has been linked into the various health benefits, including the anti-flammable means properties and that blood sugar regulations. And the demerit about the cinnamon stick, that is that the grinding required for the some recipes, and the cinnamon sticks need to be the ground into the powder to be the fully and ingredients into the dishes, and which can be the convenient of that you do not have the grinder, so you can use it in powder form from the market. And the flavor release, it means it can be challenging to the control of the
the flavor from the cinnamon sticks, and as it is releasing its flavor slowly, and it might not be the ideal for the recipes, require the pieces of that flavoring. Cost wise, it is means cinnamon stick can be more expensive that pre-ground cinnamon, and so it can be very depending on the sources of qualities. Space and storage, we can use it. This storage means whole cinnamon sticks take up more space because it is a stick, and compared to the ground cinnamon, so which might be please considered in the small kitchen. So you can use it in the small pieces, break it and use it in the small pieces, and keep kept into the tight air jar. And the space and the storage means storing whole cinnamon sticks take up more space compared to the ground cinnamons, which might be the considering its small kitchen. And the potential wise, this in some recipes, especially that involve the liquid, and the bite of the cinnamon stick might be the break off of the remaining of the dishes, which some of the might find out the uneasy craving of this cinnamon stick. Using wise, that the cinnamon stick can be enhance the flavor of many dishes, which I already spoken, which means but it is helpful to the aware of these factors to the use of them effectively in your kitchens. And the cinnamon sticks are aware of the is the cinnamon stick is a very means we can't say anything about that so much. It is enough for that cinnamon sticks, I think so. तो cinnamon sticks के विषय में आज मैंने बात किया। cinnamon stick मीन्स दालचीनी की लकड़ी के विषय में बात किया। वैसे मैंने सोचा था दालचीनी की लकड़ी के साथ में भी कुछ और टॉपिक को इंक्लूड कर देंगे, लेकिन अदर टॉपिक को भी रिलेटेड टू अदर टॉपिक को भी इंक्लूड कर देने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अदर टॉपिक को अदर वीडियो में ही लेंगे, अदर वीडियो में लेंगे, जिससे कि हमारा वीडियोस भी ज़्यादा बनेंगे और टॉपिक पे बात फ्रीली और बहुत अच्छे से बात होगी, जिससे भी और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अब बात कीजिए हमारे जो वीडियो है उसमें आवाज़ की बात की गई, इस बात को तो मैं भी माइंड कर रही हूँ कि मेरी वीडियो में आवाज़ इतनी स्लोली हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है, आवाज़ जा रही है आ रही है, बल्कि मैं वही कर रही हूँ जो पहले मैं वीडियो बनाती थी। बट दिस टाइम व्हाई इट इज़ हैपनिंग आई डोंट नो। मुझे अपने वीडियोस खुद नहीं इतने क्लियर सुनाई देते हैं, बट इट इज़ हैपनिंग, सो व्हाट आई कैन डू इट। सो बट आई वांट टू प्रिपेयर माय वीडियोस, सो आई एम डूइंग। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो खुश हो जाइए, नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।